See, downloading and uploading, there is a difference between this. So when we are downloading, means we are transmitting a file from one system to another system. ये हो रहा है ना? From one system to another system, we are transmitting the file. That is downloading. See, suppose if you are downloading any app, any game, or anything, if you are downloading, it means वो जो file present है, that is present on another system, another computer, you can say. It means transmission of file from one device to another device, from one system to another system. That is downloading. And uploading means, see this. If you want to what is uploading? This is Google Drive. See, if you want to upload something in Google Drive, new, click on new, file upload, folder upload. Now I am uploading file only, file upload. So means what I am doing, see, uploading. If you want to upload, I'm uploading this file, data sheet. So it is selected now. Now click on open. One upload complete. Okay, in the recent section, you can see data sheet file is uploaded. So what we did, what is uploading? Uploading means transmission of file. क्या कर रहे हैं? From one computer to another system, another computer, another system. यही हुआ ना? अभी ये डेटा शीट जो फाइल था, प्रेजेंट कहाँ पे था? तुम्हारे सिस्टम में. Now it is present on Google Drive. Okay, so uploading and downloading. Downloading is a transmission of file from one computer system to another system. Uploading उसका रिवर्स है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे स्मॉलर, यूजुअली स्मॉलर कंप्यूटर से अपलोडिंग होता है, स्मॉलर कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर. अभी स्मॉलर कंप्यूटर मीन्स आर सिस्टम. मेरा जो सिस्टम एक स्मॉलर कंप्यूटर है कि लार्ज एक सर्वर है? नहीं, इट इज स्मॉलर कंप्यूटर. तो अपलोडिंग मीन्स smaller computer to another computer, transmission of file from smaller computer to another computer. तो ये present the data sheet file in my download section. Okay, now it is present on Google Drive also. Now see, for this uploading and downloading, these are the two features. Okay, these are the two features which we can access with the help of internet connection. So which protocol is used? Like for email service, which protocols are used? SMTP, POP, and IMAP. Do you remember this? For email service, which protocol is used? SMTP. Let me write here. For email के लिए SMTP, POP, and IMAP. Simple Mail Transfer Protocol, Post Office Protocol, and IMAP, Internet Message Access Protocol. These three protocols are used for the email service. Okay, to access email service, these three protocols are used. So like for uploading and downloading features, uploading and downloading के लिए to upload and download, FTP protocol is used. कौन सा प्रोटोकॉल है वो? FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल.
ठीक है, टू अपलोड एंड डाउनलोड विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. ठीक है, see whenever we are accessing some web page, I have shown you that http protocol is used. ये हम लोग ने देखे थे. जो वेब पेज है, वेब पेज मीन्स pages which is present on the internet, that is called as web page. Web page means the page which is present on the internet, that is web page. See, if you are writing accessing any site like let's take Flipkart. Only I am writing Flipkart. Okay, now I don't know the exact URL. See, now I'm using different words. Huh? URL. URL means exact address of the page. URL. URL means क्या होता है? Exact address of the page. I don't know the exact address of the page क्या है Flipkart का. ठीक है? You can write just the keyword Flipkart. अभी मुझे पता है ये वाला साइट फ्लिपकार्ट का www.flipkart.com, ये एग्जैक्ट URL है फ्लिपकार्ट के पेज का. HTTPS फिर कोलन है फिर डबल स्लैश है www.flipkart.com. So there is no need to remember like this www.flipkart.com. If you're writing the keyword also, you can access it. So now see, click on this site Flipkart. See, just like I have clicked on this search bar. ये जो URL का जो है, search bar नहीं है, this is URL. Okay, address bar ये, address bar. So you can see HTTPS. HTTP means hypertext transfer protocol. Hypertext transfer protocol. S means secure. S means secure. And this is the address of the page. www.flipkart.com. Okay. तो वेब पेज को एक्सेस करने के लिए, वेब पेज कहाँ प्रेजेंट होता है? इंटरनेट की हेल्प से मैं एक्सेस कर पा रही हूँ, राइट? ये एक वेब पेज है, वेबसाइट है फ्लिपकार्ट का. वेबसाइट के अंदर डिफरेंट वेब पेजेस है, डिफरेंट वेब पेजेस है, शॉपिंग के, मोबाइल के, ग्रोसरीज के, राइट? वेबसाइट के अंदर डिफरेंट वेब पेजेस है. तो ये सब हम लोग, ये जो फीचर्स प्रेजेंट है, हाउ वी आर accessing it with the help of this protocol, HTTP protocol. How we are accessing the web page or website, which protocol is used to access the web page or website? HTTP protocol. HTTP protocol, hypertext transfer protocol. ठीक है. So upload and downloading features के लिए which protocol is used like that? ये features के लिए भी एक protocol है, वो protocol का name है file transfer protocol. अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग के जो फीचर्स है, ठीक है, ये एक्सेस करने के लिए अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग, विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड? हेलो ए डाउनलोड. ओके, FTP प्रोटोकॉल इज यूज्ड. ओके, नाउ सी, whenever you are sending an attachment in email, ठीक है, ईमेल में जब भी तुम सेंड करते हो अटैचमेंट, तो दिस इज नॉट एन अपलोड और नॉट एन डाउनलोड. जब तुम अटैचमेंट, पता है ना, वी आर सेंडिंग अटैचमेंट जो सेंड करते हैं ईमेल, तो दैट इज नॉट अपलोड और नॉट डाउनलोड, दोनों भी नहीं है वो. दैट इज नॉट अ डाउनलोड और एन अपलोड, जस्ट एन अटैचमेंट है वो तुम कुछ अपलोड कर रहे हो नहीं, कहीं पे अपलोड करेगा, जस्ट यू आर सेंडिंग अटैचमेंट. जब हम लोग अटैच करते मीन यू आर सेंडिंग टू समवन, राइट? तो कहीं पे अपलोड करना भी नहीं हुआ, कहीं पे तुम डाउनलोड भी नहीं करे. तो ये चीज याद रखो, दैट इज अ इम्पोर्टेंट पॉइंट. ईमेल का जो अटैचमेंट है, यू कांट कॉल इट एज डाउनलोड और अपलोड, दोनों भी फीचर्स नहीं है, राइट? है क्या? थिंक इट एंड आंसर. ठीक है, ईमेल अटैचमेंट इज नॉट अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग, दोनों भी नहीं है. ओके, सी, जब जो रिसिपिएंट है, अगर वो डाउनलोड करेगा अपने सिस्टम में तुम्हारा अटैचमेंट, दैट इज डाउनलोडिंग. if the recipient is downloading that attachment in the system, okay, in his system, that is downloading. Are you getting this point? Okay, now see what is copyright. We have to see what is copyright.
देन अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग स्पीड कैसे चेक करना है, हाउ डू दिस फाइल्स मूव, व्हाट अबाउट लार्ज मीडिया फाइल्स, एंड देन ये तो जस्ट आई हैव रिटन दिस ना, दिस टू प्रोटोकॉल्स, just color it, highlight it. See, first we will see upload or download speed. Upload or download speed. तो अपलोड एंड डाउनलोडिंग का जो स्पीड है दैट डिपेंड्स ऑन योर इंटरनेट कनेक्शन. अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग स्पीड किस पे डिपेंड है? इंटरनेट कनेक्शन पे डिपेंड है हमारे. ठीक है, तो मीन्स इफ यू वांट टू चेक द अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग स्पीड, एक साइट है, आई विल शो दिस साइट. Ookla speed test. You can check your internet, it is based on internet connection, so you can check uploading and downloading speed of your system. ये साइट के थ्रू यू कैन चेक ओकला. ठीक है, ओकला साइट है. क्लिक ऑन गो. connecting, okay, we have to wait for it. तो अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग स्पीड किस पे डिपेंड है हमारे? इट इज बेस्ड ऑन आवर इंटरनेट कनेक्शन. तो मेरा स्पीड 30 Mbps है. जो मेरा इंटरनेट कनेक्शन का जो स्पीड है ना 30 Mbps है. डिफरेंट Mbps में होता है स्पीड, दैट यू ऑल नो ना. जो हमारा इंटरनेट का स्पीड है वाईफाई का, डिफरेंट Mbps में है वो. किसी का 2 Mbps होगा, 4 Mbps, 8 Mbps, 50 Mbps. तो मेरा स्पीड 30 Mbps का है. पर Mbps पे जो तुम्हारे ISP होते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, बेस्ड ऑन Mbps ओनली दे आर चार्जिंग. उनका जो चार्जेस होता है ना, मंथली चार्जेस और यू कैन ईयरली जो भी चार्जेस है और मंथली का जो पैकेज तुमने लिए हो, वो तुम्हारे Mbps पे, जितना Mbps होगा, मतलब जितना Mbps ज्यादा है उतना ही चार्ज ज्यादा होगा. क्योंकि Mbps जितना ज्यादा है उतना स्पीड ज्यादा होगा, राइट? अभी मैं बोलूंगी 8 Mbps इज बेटर और 30 Mbps इज बेटर. ऑफ कोर्स 30 Mbps इज फास्टर देन 8 Mbps. Mbps का फुल फॉर्म है मेगा बीट पर सेकेंड. मेगा बीट पर सेकेंड. ठीक है, ये स्पीड का ये तुम्हारा ये है, स्पीड इंडिकेट करता है Mbps, मेगा बीट पर सेकेंड. तो नाउ इट इज शोइंग, सी 30 Mbps है मेरा. डाउनलोडिंग स्पीड 19 अभी करंट दिखा रहा है मैं इंटरनेट कनेक्टिविटी के अकॉर्डिंग. एंड अपलोडिंग स्पीड एट करंट इज 26. इंटरनेट फ्लक्चुएट भी होता है, वी ऑल नो दिस, के सेम हम लोग को जो है स्पीड सेम नहीं मिलता है एट ऑल द टाइम. उसमें फ्लक्चुएशन भी आता है. ठीक है, बेस्ड ऑन द सिग्नल. but now it's showing based on my internet connection, मेरे सिस्टम के इंटरनेट कनेक्शन के अकॉर्डिंग my uploading speed is 26 and the downloading speed of my system is 19 Mbps and uploading 26 Mbps. So you can check your internet speed, internet means uploading and downloading speed based on your internet connection by using this site. This site Ookla. अच्छा, different sites है. ये एक site है Ookla. Ookla test you can do. Site का name है Ookla. Speed test by Ookla. So uploading and downloading, it is based on internet connection. It is based on our internet connection. तो डिफरेंट साइट्स है. मैंने एक साइट बताई ओकला. आई एम राइटिंग डिफरेंट साइट्स नेम हियर. साइट्स के नेम है स्पीक इजी, देन स्पीड टेस्ट, internet frog. So these are the different sites, websites where you can check your internet speed.
ओके, कौन सा साइट से? स्पीक इजी, स्पीड टेस्ट, इंटरनेट फ्रॉग। Okay, now see how do these files move? How do these files move? This point. See, when we are downloading or uploading some file, जब भी हम लोग डाउनलोड करते हैं और अपलोड करते हैं some file online, which protocol is used? FTP protocol, right? कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है? FTP प्रोटोकॉल। FTP stands for file transfer protocol. So how do these files move? इसका मीनिंग क्या है? See, all the information which is present on the web. Web means internet, जो available है. All the information which is available on the internet, वो travel कैसा हो रहा है? Beat by beat, or you can say packet by packet. How these files are moving? Beat by beat और packet by packet. Beat by beat means, beat का meaning क्या होता है? See, beat by beat. पैकेट मूव होता है तो बीट बाय बीट, और यू कैन से पैकेट्स के फॉर्म में। ओके, नाउ अंडरस्टैंड दिस टू टर्मिनोलॉजी। व्हाट इज बीट बाय बीट? कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स ओनली बाइनरी लैंग्वेज, दैट इज 1 and 0, दैट वी ऑल नो। कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स ओनली बाइनरी लैंग्वेज, दैट इज 1 or 0। तो बीट मीन्स आइदर 1 होगा मैसेज या तो बीट। बीट मीन्स ये सिंगल बीट 1 है या तो 0 होगा बीट, या तो 1 होगा या तो 0 होगा। ठीक है, अब पैकेट का मीनिंग समझो। पैकेट क्या है? पैकेट मीन्स अ स्मॉल पीस ऑफ डेटा दैट इज सेंट ओवर अ नेटवर्क। पैकेट मीन्स अ स्मॉल piece of data that is sent over a network. See, let's take an example. Suppose A wants to send some message to B, some message or anything, or any file, any PDF file, any Excel file, anything, any video, image. A wants to send something to B. So that जो send कर रहा है A, जो B को send कर रहा है, तो जो मैसेज है that will travel over a network. नेटवर्क के थ्रू ट्रैवल होके जाएगा ना बी के पास मैसेज। ये पॉइंट क्लियर है? तो जो मैसेज जो ट्रैवल हो रहा है नेटवर्क में मैसेज, ठीक है, ए है और बी है, और नेटवर्क में मैसेज अभी ट्रैवल हो रहा है। ए ने भेज दिया मैसेज, अभी वो नेटवर्क पे ट्रैवल होगा और बी के पास रीच करेगा, राइट? तो जब वो नेटवर्क पे ट्रैवल होता है ना, तो बीट बाय बीट होता है। समझ रहे हो? लार्ज फाइल, एक लार्ज फाइल है समझो, एक लार्ज तुम्हारा कोई फाइल है, लेट अस कंसीडर यू आर सेंडिंग लार्ज फाइल टू बी, तो वो फाइल बीट बाय बीट में जाएगा, मतलब ब्रेक डाउन होके जाएगा स्मॉल स्मॉल पीसेस में। रिसीवर को ब्रेक डाउन होके नहीं मिलेगा, रिसीवर को पूरा जो फाइल है वो मिलेगा, बट नेटवर्क में ट्रैवल कैसे हो रहा है? वो बीट बाय बीट, मीन फाइल ब्रेक डाउन हो रहा है स्मॉल स्मॉल पीसेस में। और अनदर टर्म यू कैन से पैकेट बाय पैकेट में जा रहा है। Let's take example, one more example. See this. This is the message. ये कोई मैसेज है, मुझे नहीं पता ये क्या मैसेज है, ठीक है। ये मैसेज बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट हो गया। बाइनरी लैंग्वेज मीन्स 1 and 0, बिकॉज कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स ओनली बाइनरी लैंग्वेज, दैट इज 1 and 0। तो दिस इज सम मैसेज और कंप्यूटर ने इसको बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया है, राइट? बहुत लेंथी मैसेज है, लेट्स कंसीडर। तो अकॉर्डिंग टू द चैनल स्ट्रेंथ, अकॉर्डिंग टू द नेटवर्क स्ट्रेंथ, वो पैकेट में डिवाइड हो जाएगा। पैकेट मीन्स समझो, लेट अस कंसीडर 8 बीट्स का एक पैकेट बन जाएगा, 8 बीट्स का। नेक्स्ट 8 बीट का एक पैकेट बनेगा, नेक्स्ट 8 बीट का एक पैकेट बनेगा। समझ रहे हो? तो पैकेट बाय पैकेट, पैकेट मीन्स इट इज अ स्मॉल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज सेंट ओवर अ नेटवर्क। स्मॉल स्मॉल पार्ट में जो ब्रेक डाउन होके मैसेजेस जाएगा, दैट इज पैकेट। ठीक है, तो फाइल कैसे मूव होता है नेटवर्क में? हाउ डू दिस फाइल्स मूव?
बीट बाय बीट और यू कैन से पैकेट्स के फॉर्मेट में फाइल्स आर ट्रेवलिंग ओवर अ नेटवर्क। ठीक है, तो नेटवर्क में पैकेट के फॉर्मेट में गया, स्मॉल स्मॉल पीस में ब्रेक डाउन होगा, पैकेट मीन स्मॉल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट। और रिसीवर को ऐसा ब्रेक डाउन होके नहीं मिलेगा, हाँ फुल फाइल ही मिलेगा, पर नेटवर्क में वो क्या होता है, ब्रेक डाउन होके जाता है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? जैसे गिफ्ट जो है हम लोग रैप करते हैं, अंदर गिफ्ट होता है, बाहर उसको रैपिंग करते हैं हम लोग, राइट। तो वैसे ही पैकेट के अंदर डेटा रैप है, मतलब डेटा को कैसा रैप किया गया है उसको हम लोग बोल रहे हैं पैकेट वर्ड है, जैसे कवरिंग उसका, समझ रहे हो। तो पैकेट के अंदर क्या डेटा है, व्हाट इज देयर इनसाइड द पैकेट, डेटा। व्हाट डज पैकेट कंटेन, पैकेट में क्या प्रेजेंट है, व्हाट इट कंटेन्स, डेटा। पैकेट में डेटा ये ना, the packet means it is a small piece of information that is sent over a network। तो फाइल जो है मूव कैसा होता है ओवर नेटवर्क, बीट बाय बीट और इन द पैकेट फॉर्मेट। ईच पैकेट कंटेन्स अ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। पैकेट में क्या प्रेजेंट होता है, सी जब नेटवर्क में पैकेट ट्रेवल होता है, जब नेटवर्क में पैकेट ट्रेवल हो रहा है, पैकेट कंफ्यूज नहीं होना है, ए इज सेंडिंग सम मैसेज टू बी, तो वो मैसेज कैसे ट्रेवल हो रहा है, सम फाइल टू बी, ओके। तो फाइल पैकेट के फॉर्मेट में ट्रेवल हो रहा है, मीन वो फाइल ब्रेक डाउन हो गया इनटू स्मॉल पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, दैट इज कॉल्ड एज पैकेट। तो पैकेट में क्या है, व्हाट डज इट कंटेन, क्या प्रेजेंट है, सोर्स डेटा। सी आई एम राइटिंग हियर, व्हाट डज पैकेट कंटेन, सोर्स डेटा, सोर्स डेटा नहीं, सोर्स एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस एंड डेटा। ओके नाउ सी, जब ए सेंड कर रहा है, ए और बी समझो, ठीक है, ए सेंडिंग सम फाइल टू बी, अब वो फाइल कैसे ट्रैवल होगा, दैट फाइल विल ट्रैवल ओवर अ नेटवर्क, नेटवर्क के थ्रू वो फाइल ट्रैवल होगा। तो वो नेटवर्क को कैसे पता चलेगा ये बी को ही भेजना है, समझ में आ रही है बात, नेटवर्क को कैसे पता चलेगा बी को ही भेजना है। थोड़ा ध्यान से समझो बात को, मैं किसी को नेटवर्क के थ्रू कुछ भेजना चाह रही हूँ, तो नेटवर्क बराबर बी बी को भेजना है मुझे, लेट्स टेक काजल को भेजना है और किसी को, तो उसको कैसे पता चला काजल को ही भेजना है ये मैसेज, बिकॉज पैकेट में क्या होता है, जब तुम अपने सिस्टम से, कंप्यूटर से समझो, कुछ मैसेज भेजते हो ओवर नेटवर्क, तो उसमें सोर्स एड्रेस होता है। सोर्स एड्रेस मीन्स जो मैसेज सेंड कर रहा है, द पर्सन हु इज सेंडिंग द मैसेज, उसके डिवाइस का एड्रेस, जैसे आईपी एड्रेस हो गया, उसके डिवाइस का एड्रेस। डेस्टिनेशन एड्रेस भी ऐड करता है नेटवर्क, क्या ऐड करता है, डेस्टिनेशन एड्रेस मीन्स जिसको भेजना है मुझे उसका एड्रेस भी हम लोग सेट करेंगे। देन डेटा, तीन चीजें, सोर्स एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस और डेटा। पैकेट कंटेन्स थ्री टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन, source address, destination address, data. Data means the data which you want to send, the actual data. Destination address means to whom you want to send the data, कौन recipient है, destination address। तो destination address present है पैकेट में, then जब भी पता चलता है नेटवर्क को कि ये destination को भेजना है। See अब सिंपल एग्जांपल लो, अभी if you want to call someone, तो कैसे कनेक्ट हो रहा है, with the help of mobile number। मोबाइल नंबर से यू आर एबल टू कनेक्ट विद अ स्पेसिफिक पर्सन, राइट। तो मोबाइल नंबर क्या, दैट इज अ डेस्टिनेशन एड्रेस ना, टू कनेक्ट विद समवन ओवर अ नेटवर्क, समझ रहे हो। तो वैसे ही जब तुम नेटवर्क के थ्रू इंटरनेट के हेल्प से कुछ फाइल ट्रांसफर करते हो, जैसे मेल में सेंड कर रही फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, ठीक है, फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, तो उसमें इंफॉर्मेशन में वो पैकेट के थ्रू ट्रेवल हो रहा है, समझ लो, पैकेट के थ्रू। तो पैकेट में क्या है, पैकेट मीन स्मॉल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। पैकेट में क्या प्रेजेंट है, सोर्स एड्रेस,
जो भेज रहा है, द पर्सन इज सेंडिंग द डेटा, डेस्टिनेशन टू whom you want to send the data, जिसको भेजना है, and the actual data. You can consider this as to address, from address and the data. Clear है इतना? So how do these files move on a network? Over a network, how do these files move? File कैसे move हो रहा है? Bit by bit or packets? Bit by bit or packets? Now see, the next point is, what about large media files? What about large media files? जो फाइल का साइज बहुत ज्यादा है, उसके बारे में क्या? See, like we can take some example, some large document है, okay? So sometimes large document है, it is difficult to upload or download online, मतलब online जो है, मतलब with the help of internet only. It is sometimes it is difficult to download or upload large files. देखो कभी कभी नेटवर्क फेल आता है when we are downloading large file or when we are uploading large file, network fail, server fail. So what about these files, right? When a user attempts to upload or download large files, so sometimes it is very difficult. तो उसके लिए there are different ways are there to deal with it. एक वे ये है, we can take real life example जो हम लोग यूज कर रहे हैं. Let's take Zoom example. Zoom का फीचर एवरीवन नो दिस एग्जांपल के 100 पार्टिसिपेंट्स अलाउ है इसमें. 100 पार्टिसिपेंट्स अलाउ थे ना Zoom में. तो तो उसके मोर देन समझो 100 आ रहे, तो क्या होगा? यूट्यूब का लाइव स्ट्रीमिंग इज अवेलेबल. बाकी के लोग कहाँ पे जा सकते हैं? यूट्यूब पे जो लाइव स्ट्रीमिंग चल रहा है वहां जा सकते हैं. हाँ अभी 1000 हो गया, इंक्रीज हो गया 1000. अर्लियर जो वर्जन में था इट वाज 100, अभी 1000. जूम का भी जो वर्जन है वो अपडेट होते जा रहा है, मीन्स में भी फीचर्स ऐड होते जा रहे. मतलब समझ रहे हो ना, जैसे वर्जन चेंज होते. अभी लेट अस कंसीडर जूम का वर्जन 5.5 चल रहा है, एग्जैक्ट आई डोंट नो, आई थिंक 5 पॉइंट में कुछ है. तो चेंज होता रहेगा, जैसे वर्जन 5.6 और 6, जैसे वर्जन नंबर चेंज होते हैं ना, वैसे उसमें फीचर्स भी कुछ ना कुछ ऐड होते हैं न्यू न्यू. जैसे हमारे फोन के भी वर्जन होते हैं ना, एंड्रॉइड का वर्जन कौन सा है तुम्हारा,